various organs of the various organs of the human digestive system various organs of the human digestive system in sequence are the various organs of the human digestive system in sequence are mouth, esophagus, OESOPHAGUS, esophagus बोलते हैं इसको, स्पेलिंग ये होता है फूल पाइप को बोलते हैं ना। हाँ जी, फूल पाइप। सर ट्रैकियो फूल पाइप अलग होता है सेम होता है? अलग होता है, अलग। esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Stomach, comma, small intestine, and large intestine. Full stop. Next point लिखें, the glands which are associated with the human digestive system. ये तो organs हो गए, उसके बाद glands. The glands which are associated with the human digestive system, which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive system are a part of the human digestive system are salivary glands, liver and pancreas. Salivary glands, liver and pancreas. डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। 3 तरीके के ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स में और ऑर्गन्स में क्या अंतर है? ऑर्गन के अंदर कोई प्रोसेस होता है और जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता। जैसे ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स ना एंजाइम्स जनरेट करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी की जो भी फूड होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं इन सीक्वेंस। जैसे पहले माउथ है, और ये सीक्वेंस का मतलब क्या है कि पहले माउथ आएगा, फिर फूड पाइप आएगा यानी कि इसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। इसी तरीके से जो ग्लैंड्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 तरीके के ग्लैंड्स हैं। एक तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। तो इनके सबके हमको फंक्शंस भी यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नोट करें, द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, the various steps of nutrition in human beings
The various steps of nutrition in human beings are, अब वही है, फर्स्ट है इंजेक्शन, the human beings has a special organ for the ingestion of food. The human beings have a special organ for the ingestion of food. Human beings have a special. The human beings have a special organ for the ingestion of food. The human beings have a special organ for the ingestion of food. Full stop. It is called mouth. It is called mouth. सेकेंड स्टेप जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का, सेकेंड स्टेप काफ़ी बड़ा है, डाइजेशन। डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है हार्मोन्स जो है हार्मोन्स की हेल्प से होगा। हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का ही काम होता है एंजाइम्स में सिक्रीट करना और हार्मोन्स में सिक्रीट करना। सिक्रीट करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। चलिए सेकेंड देखें हम, डाइजेशन। डाइजेशन में लिखिएगा, इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। In human beings, the digestion of food begins in the human beings. The digestion in human beings, the digestion of food begins in the mouth itself. Full stop. लिखिएगा, this happens as follows. This happens as follows. The mouth cavity or buccal cavity or buccal cavity, BUCCAL, buccal cavity, इधर दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख रहा हूँ। The mouth cavity or buccal cavity contains teeth, tongue and salivary glands. Contains teeth, tongue and salivary glands.
salivary glands. The teeth cut the food into small pieces. The teeth cut the food. The teeth cut the food into. The teeth cut the food into small pieces, chew and grind it into small pieces, chew and grind it. Full stop. So the teeth help in physical digestion. So the teeth help in physical. So the teeth help in physical digestion. Next point note करें. The salivary glands in our mouth produce saliva. The salivary glands in our mouth produce saliva. Saliva is a watery liquid, so it wets the food in our mouth. Saliva is a watery liquid, so it wets the food Saliva is a watery liquid, so it wets the food in our mouth. Full stop. The wetted food can be swallowed more easily. The wetted food can be swallowed more easily. और किसी में लिखेंगे salivary glands. Thus salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. Thus salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. देखिए इंजेक्शन तो बिल्कुल इसमें सिंपल है. द ह्यूमन बीइंग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड. इट इज कॉल्ड माउथ. इंजेक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग्स में एक स्पेशल ऑर्गन होता है माउथ. भाई मुंह से ही खाना खाया जाता है, ठीक है. मुंह में हम खाना रख लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन. उसके बाद जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन एकदम से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हैं. इन ह्यूमन बीइंग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ. माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले ये होता है डाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजीली सॉल्यूबल इन वाटर. अब हम ये कहते हैं माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर की जो कैविटी है, जो हिस्सा है, द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स.
उसके अंदर क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स इधर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस जगह होते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी तो ऑब्जर्व उसमें करा tonsils होगा होते हैं ना? हम कुछ। हाँ सलाइवरी ग्लैंड्स में टॉन्सिल्स होते हैं। नहीं, टॉन्सिल तो इधर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं, इस तरफ जो आपकी जॉ लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पर होते हैं। और आपने नोटिस करा होगा कि जब कभी हम कोई खट्टी चीज़ जैसे कोई नींबू खाते हैं तो यहाँ से कुछ पानी पानी से सिक्रीट होने लगता है इस जगह से। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम क्या करेगा, टीथ। टीथ जो है वो फूड को कट करने का काम करेगा। जब हम खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, तो धीरे धीरे उसको काट काट कर और फिर उसको च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो वो जो खाना है वो थोड़ा सा फिजिकली वो कट कर छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक वाटरी लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। वो वाटरी लिक्विड क्या करता है, उस वाटरी लिक्विड में थोड़ा एसिड भी होता है, HCl होता है उसके अंदर एसिड। तो वो जो सलाइवा होता है वो जब उस छोटे छोटे खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्सअप हो जाता है तो वो जो फूड है वो थोड़ा सा वेट हो जाता है और वेटेड फूड को हम आसानी से स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ड्राई फूड। समझ रहे हो, ठीक है। चलिए जी, द सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो तो केमिकल डाइजेशन करते हैं क्योंकि वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, यही जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। और जो टीथ है वो करते हैं फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन मतलब फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ खाया था और आपने उसको च्यू करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप सलाइवरी ग्लैंड से कितने पेयर होते हैं? दोबारा बोलो क्या? सलाइवरी ग्लैंड से कितने पेयर होते हैं? एक ही होता है बस, इधर बस ये एक सिंगल पेयर। कई बार आपने देखा भी होगा, आपको बड़ी तेज भूख लगी है या आपका कोई फेवरेट फूड रखा हुआ है सामने, है ना, तो आपने खाया भी नहीं है उसको, आपने खाया भी नहीं है, देखते ही आपके यहाँ से पानी सा सिक्रीट होता है, मुंह में पानी कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, ठीक है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स का ही काम होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। टंग के नीचे से नहीं होते। हाँ, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी टंग के नीचे से प्रेजेंट होते हैं। नहीं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं बेटा, इस जगह जहाँ पर मैं हाथ लगा कर दिखा रहा हूँ। ओके सर, फिर वो टंग के नीचे से कौन से ग्लैंड्स होते हैं? क्योंकि जब फीवर होता है तो टेम्परेचर हम मुंह में जो थर्मामीटर रखते हैं तो टंग के नीचे टंग रखते के हैं। नीचे रखते हैं, हाँ इस हाँ। वर्ड्स तो ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जिसमें कि हमारा टेम्परेचर पता चल जाता है? पता नहीं है तो फिर टेस्ट वर्ड्स तो नहीं होते? कौन सा, टेस्ट वर्ड्स इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा। हाँ, नोट करिएगा, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम the human saliva contains an enzyme called salivary amylase, The human saliva contains an enzyme called salivary amylase which digests the starch present in food. Which digests the starch present in food into sugar, which digests the starch present in food into sugar. Thus, the digestion of starch begins in the mouth itself.
नेक्स्ट पॉइंट देखें, thus the digestion of starch begins in the mouth itself. Full stop. When this slightly digested food enters the food pipe, when this slightly digested food enters the food pipe, when the slightly digested food enters the food pipe, the walls of food pipe start the walls of food pipe start the walls of food pipe start contraction and expansion movements. The walls of food pipe start contraction and expansion movements. So is it peristaltic movement? कॉमा करके लिखना है, which is called peristaltic movement, which is called peristaltic movement. Next लिखें, this movement of food pipe, this movement of food pipe, this movement of food pipe pushes the slightly digested food into the stomach. Pushes the slightly digested food into the stomach. Pushes the slightly digested food into the stomach. ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे आप ये देखिए कि सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, उस सलाइवा में जो दांतों ने जो फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया था, तो वो जब सलाइवा में मिक्स हो गया तो फूड हमारा थोड़ा सा वेट हो गया। तो ये जो वेटेड फूड है ये इसोफेगस के थ्रू अंदर जाने लगा, तो अंदर जाने कैसे लगा, कोई पुश कर रहा है क्या उसको? तो हम ये कहेंगे कि जो इसोफेगस है, इसोफेगस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तरीके का मूवमेंट दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसा होता है कि जहाँ जहाँ फूड जैसे ही एंटर करता है, तो जिस जगह फूड एंटर करता है उस जगह पर तो वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है फूड के आने के लिए, ताकि फूड इजीली उसके अंदर आ जाए, ठीक है। और उसके आगे वाला हिस्सा और उसके पीछे वाला हिस्सा वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो जो ऊपर एक्सपेंडेड पोर्शन है फिर वो उसको पुश करता है नीचे की तरफ, फिर आगे वाला जो पाइप है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे मूव करता है। तो जो पीछे वाला कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन है वो उसको आगे की तरफ पुश करता है। फॉर एग्जांपल आप सोच कर देखिए कि कोई एक बलून है आपके पास जिसमें पूरी हवा नहीं भरी हुई है, आधी हवा भरी हुई है, ठीक है। आधी हवा इस वजह से भरी हुई है क्योंकि अगर पूरा भर दिया आपने तो आपने लगभग उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर दी।
आधी हवा भरी हुई है, अगर आप उसको एक तरफ से पुश करेंगे तो आप देखेंगे जो आप पुश करेंगे तो बची हुई जो हवा है वो दूसरी तरफ इकट्ठी हो जाती है, बलून दूसरी जगह से फूल जाता है। और दूसरी जगह से अगर पुश करेंगे तो वो दूसरी तरफ से फूल जाता है। तो वही चीज़ है कि जब आप पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी कि वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। तो जब फूड पाइप ऊपर से सिकुड़ता है तो जो नीचे फूड था वो नीचे वाले फूड को नीचे की तरफ पुश कर देता है, ठीक है ना। और जब वो नीचे की तरफ पुश करता है तो जो आपका फूड पाइप है वो फूड पाइप आगे से एक्सपैंड होता हुआ चला जाता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है और नीचे जाने के बाद अल्टीमेटली वो स्टमक में जाकर गिरता है। अब स्टमक में क्या होता है, नोट करिएगा। नेक्स्ट नोट करें, द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक food is further digested. The food is further digested in the stomach. The food is further digested in the stomach. Full stop. The food is churned in the stomach for about 3 hours. The food is churned, CHURNED। churn का मतलब क्या होता है, ये churning का मतलब होता है कि उसको बार बार जैसे किसी चीज़ को एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे वॉशिंग मशीन में एक्शन होता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कपड़ों को धोती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो फूड है वो 3 घंटे तक उसकी चर्निंग चलती रहती है। फूड की जो चर्निंग है वो स्टमक के अंदर चलती रहती है, ठीक है। The food is further digested in the stomach. The food is churned for about 3 hours. The food is churned for about 3 hours. Full stop. Next point लिखेंगे, during this time broken down into simpler substances. हाँ जी, जब उसकी चर्निंग होती है तो चर्निंग होके वो और फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में उसको डिवाइड कर देता है। तो नोट करें, द फूड इज चर्न फॉर अबाउट 3 hours, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन the food breaks down into still smaller pieces, into still smaller pieces and forms a semi-solid paste and forms a semi-solid paste. Full stop. The stomach wall contains 3 tubular glands in its walls. देखिएगा, the stomach wall contains 3 tubular glands. Contain 3 tubular glands in its walls.
three tubular glands in its walls. Full stop. The glands present in the walls of the stomach present in the walls of the glands present in the walls of the stomach secrete gastric juice. Secrete gastric juice. Full stop. The gastric juice contains three substances. The gastric juice contains three substances. The gastric juice contains three substances: hydrochloric acid, the enzyme pepsin, and mucus. Hydrochloric acid, comma, डायबिटीज होता है ना काफी ज्यादा, and G, डायबिटीज होता है ना काफी हाँ। ज्यादा, the enzyme pepsin and mucus. MUCUS, mucus. सर पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अभी मैं बता रहा हूँ, तीनों के फंक्शंस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करता है ये। इनर लाइनिंग कर सकता है, हाँ मुकस स्टमक की इनर लाइनिंग कर सकता हाँ हाँ, सुनिएगा। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के बाद हमने ये कहा कि फूड स्टमक के अंदर आ गया। अच्छा, ये जितना भी आपको लिखवा रहा हूँ ना, इसको सारे को रखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है आप समझ लेना, ठीक है। इनमें से आपसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी जाती कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। इसमें से बीच बीच में से छोटा छोटा कुछ पूछा जा सकता है, तो सिर्फ समझते ही चलना है इसको, क्योंकि अगर इसको याद करने बैठ गया ना तो बहुत लंबा है, नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा, द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, द फूड इज़ चर्न फॉर अबाउट 3 hours। फूड जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद में फर्दर डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। स्टमक में वो 3 घंटे तक उसकी चर्निंग चलती रहती है फूड की। अभी जो 3 घंटे तक चर्निंग चलती है उसमें होता क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। तो ये जो उसकी चर्निंग चलती रहती है 3 घंटे तक, इसमें क्या होता है कि फूड जो है उसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फूड जो है फिर वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टमक वॉल्स कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स। तो ट्यूब के जैसी दिखने वाली 3 ग्लैंड्स होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं स्टमक की वॉल्स में, ठीक है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, जो और फर्दर डाइजेशन में काम करता है, मतलब और छोटे पार्टिकल में उसको डिवाइड करना है। अच्छा, डाइजेशन जो है, डाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि फूड को इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, इतने छोटे पार्टिकल्स में कि वो ब्लड के अंदर इजीली मिक्सअप हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस, ठीक। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक एंजाइम पेप्सिन होता है और एक होता है म्यूकस। अब इन तीनों के फंक्शंस देख लीजिए। देखिएगा, due to the presence of hydrochloric acid, the gastric juice is acidic in nature. Due to the presence of hydrochloric acid, the gastric juice is, due to the presence of hydrochloric acid, the gastric juice is acidic in nature. The gastric juice is acidic in nature.
अब लिखेंगे इन द एसिडिक मीडियम, नेक्स्ट पॉइंट, इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन in the acidic medium the enzyme pepsin begins the digestion of proteins present in food begins the digestion of proteins begins the digestion of proteins begins the digestion of proteins present in food to form smaller molecules full stop. So the function of hydrochloric acid in the stomach function of hydrochloric acid लिखने की बजाय HCl लिख दो, function of HCl in stomach. So the function of hydrochloric acid in stomach is to make the medium of gastric juice acidic. Is to make the medium of gastric juice acidic. Is to make the medium of gastric juice acidic so that the enzyme pepsin can digest the proteins properly. Can digest the proteins properly. मतलब आप ये देखिएगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, म्यूकस भी होता है, म्यूकस पर आता हूँ अभी। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। तो गैस्ट्रिक जूस में क्योंकि HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का जो नेचर है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। अब जो एंजाइम पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, वो नॉर्मल या तो न्यूट्रल मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, उसमें काम नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे वही है, इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स।
तो जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम मिलता है एंजाइम पेप्सिन को, तो वो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन, प्रोटीन जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उसका डाइजेशन शुरू कर देता है टू कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना वो शुरू कर देता है, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रॉपर्ली, ताकि एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके। इस वजह से जो HCl है, HCl का काम केवल और केवल इतना होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, वो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाते हैं, सिर्फ इतना रोल होता है इसका। देखिए ऐसा है कि म्यूकस जब ज़्यादा होता है, म्यूकस पर मैं आता हूँ अभी, हम फिलहाल इसकी बात करते हैं कि जैसे HCl है, तो HCl अगर ज़्यादा होने की बात नहीं है, ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फूड खा लेते हैं ना, तो जो एसिड है वो एसिड जब सिक्रीट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसका दो रीज़न होते हैं। एक तो ये है कि हमने फूड बहुत ज़्यादा खा लिया, अब वो फूड डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा है, एसिड लगातार जो है वो उसको एसिड सिक्रीट हो रहा है और लगातार उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने खा इतना ज़्यादा लिया है कि वो उसको मतलब एसिड को उतना फूड नहीं मिल रहा है, एसिड को उतना ही फूड मिले जितना वो आराम से डाइजेस्ट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगे पड़े हो, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि एक तो इस केस में एसिडिटी होती है कि एसिड ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, तो एसिड क्या करता है, एसिड स्टमक की वॉल्स को ही बर्न करने लगता है, और फिर जो वॉल्स हैं वो वॉल्स ही उसमें जब जलन होती है तो वो हमको लगता है कि जैसे पेट में जलन हो रही है, ऐसा लगता है। अब इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं अल्सर। अल्सर एक प्रॉब्लम होती है। अल्सर में क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल्स है, स्टमक की वॉल्स में, अच्छा ये भी जनरली या तो एक्सेसिव फास्टिंग की वजह से कि बहुत ज़्यादा भूखे रह रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो या तो उसकी वजह से होता है, या फिर एक्सेसिव ओवर ईटिंग की वजह से होता है कि आपको आदत ही बन गई है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो उन केसेस में एसिड जो है, एसिड धीरे धीरे स्टमक की वॉल्स को डिस्टर्ब करने लगता है। जब वॉल्स को डिस्टर्ब करने लगता है तो वॉल्स में छोटे पोर्स हो जाते हैं, स्मॉल होल्स हो जाते हैं। तो उन होल्स की वजह से थोड़ा जो एसिड है वो लीक आउट होने लगता है स्टमक के बाहर। तो स्टमक के बाहर का जो एरियाज़ है वो उसमें भी जलन पैदा करने लगता है, तो उस केस में और ज़्यादा जलन होने लगती है स्टमक के अंदर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मतलब जो डाइट है, डाइट के साथ में हमेशा ये बोला जाता है कि बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ऐसा भी ना हो कि आपको भूख तो लगी है कि 4 रोटी खानी है और 2 रोटी के बाद ही नहीं बस इतना ही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भूख तो 4 रोटी की लगी है, पता चला लगे पड़े हैं अपना खा ही जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खा रहे हैं, तो उससे भी और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टमक है और हमारा जो माउथ है, माउथ में जो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl माउथ में भी होता है। आपने नोटिस करा होगा कि सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आती है, वो स्मेल उस एसिड की वजह से आती है, क्योंकि थ्रू आउट नाइट वो जो एसिड है वो मुंह के अंदर रहा है, ठीक है। अच्छा, और उसको बोलने का या कुछ आपने बीच में पानी पिया हो या कुछ खाना खाया हो, ऐसा कुछ उसको मौका मिला नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो स्टमक है, स्टमक में HCl की वैल्यू होती है, HCl का जो pH वैल्यू होती है वो होती है 1.5। अब आप कहेंगे 1.5 तो बहुत खतरनाक वैल्यू है, इससे तो जलन होनी चाहिए। तो 1.5 से जलन होती है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो पेट में जलन होने लगती है, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है ना जब भूख लगती है, तो वो एसिड कहता है कि भाई चाहिए मेरे को कुछ, है ना। तो 1.5 होती है, 1.5 अच्छी खासी वैल्यू होती है, लेकिन वो जला नहीं पाता उसको, वो उसको जलाएगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि डाइल्यूट होता है, लेकिन वैल्यू उसकी 1.5 होती है। 1.5 से नीचे अगर वैल्यू चली जाएगी तो एसिड बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएगा। तो एसिडिटी हाँ, बिलो 1.5 का वो जो लोग शराब पीते हैं ना, जो टल्ली हो जाते हैं, है ना, तो एक तो वैसे ही एसिड है, ऊपर से आपने उसके अंदर अल्कोहल और घुसा दिया। तो कभी हाँ, 0 मतलब pH वैल्यू जो है वो 0 से 7 के बीच में है, तो कोई भी चीज़ जो है वो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में है। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा ना शायद। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी वैसे मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा मौका ना ही आए लाइफ में, तो अच्छा है। कभी आप देखना कि ऑब्ज़र्व करना कभी
1-2 घंटे का अगर वेला टाइम हो तो आपको ये करना होगा कि जैसे वाइन शॉप्स होती हैं तो किसी वाइन शॉप के बाहर खड़े हो जाना और वहाँ के आसपास ना ऐसे ही ऑब्जर्व करना कि वहाँ पर ना आसपास गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं। भाई गाड़ी आओ, शराब लो और जाओ, खड़ी क्यों है गाड़ी? जब वहाँ गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी में खड़े होकर पहले तो वो शराब पीते हैं, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ना, जब वाइन शॉप का बंद होने का टाइम होता है उसके बाद भी कुछ खाने पीने की शॉप्स होती हैं, उस पर भीड़ टूटी पड़ी रहती है बहुत बुरी तरीके से। उसका रीज़न यही है कि जब वो बहुत ज़्यादा मतलब तमीज़ तो है नहीं ना लोगों को, वो थोड़ा कायदे से ही पी लो, जैसे वो मिलिट्री मैन लेते हैं, उनके लिए तो मजबूरी है, वो इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करते हैं तो उनके लिए तो मजबूरी होती है, उनको तो डॉक्टर तक सजेस्ट करते हैं। तो अल्कोहल बना था किसी और काम के लिए और होने लगा हाँ होने लगा कुछ और, ठीक है। और आपने अगर ये भी देखा होगा कुछ दवाइयाँ होती हैं कि कुछ खांसी की दवाइयाँ होती हैं तो उस पर आजकल लिखा रहता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो हम वो दवाई देंगे। पता चला कि भाई वो डब्बा ही लेकर जा रहे हैं उसका, कोरेक्स का जो कफ सिरप है उसे पी के पड़े ना सड़क के किनारे कहीं पे, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि अभी कोविड में तो काफ़ी देखा होगा, उस पर लिखा रहता था, वो जो सैनिटाइज़र आता था ना उस पर ये लिखा रहता था यह पीने के लिए नहीं है, उस पर ये लिखा रहता था सर नीचे। मैंने सर एक न्यूज़ भी चला सर। हाँ सर सर एक कि इथेनॉल इथेनॉल नहीं सर कि अगर वाइन शॉट्स जल्दी नहीं खुलती तो फिर लोग गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट अल्कोहल फ्रॉम सैनिटाइजर। हाँ वो इसी तरीके से उल्टे सीधे काम करते हैं। सर किसी को से ज़्यादा शौक चढ़ गया, उसने आइसोप्रोपिक अल्कोहल यूज़ कर लिया तो क्या होगा? बस पता ही नहीं क्या होगा भाई, हमने तो आज तक टेस्ट करा नहीं तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हंसी बहुत आती है ऐसा ऐसा को देखकर। तो अपना खैर कुल मिलाकर ये है कि वो अल्कोहल जो है, अल्कोहल भी बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है और स्टमक में वैसे ही एसिड है। तो उसके बाद जो है फिर आदमी को ये होता है कि यार मैं कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख कुछ नहीं लग रही है, वो स्टमक में जलन हो रही है। तो ये चीज़ है ना। और इसमें ये चीज़ भी होती है कि दो तरीके के हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, मीथेनॉल और इथेनॉल, ये दो तरीके के अल्कोहल्स होते हैं। तो इथेनॉल तो चलो कंज्यूमेबल है, इथेनॉल की बियर वगैरह ये सब विस्की रम बियर वगैरह सब इथेनॉल की बनती हैं। और ये बाई प्रोडक्ट होता है जो शुगर मिल होती है जहाँ पर गन्ना उसका बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट मीथेनॉल भी होता है। अब मीथेनॉल पी लेते हैं लोग और अखबार में न्यूज़ आती है कि जी मर गए सच में, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो आंखें टेस्ट करवा रहे हैं अपनी, और आंखें टेस्ट करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तो चश्मा भी काम नहीं कर रहा, वो अंधे हो गए। तो मीथेनॉल जो है, मीथेनॉल परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, मीथेनॉल से परमानेंटली आदमी अंधा हो जाता है। तो खैर कुल मिलाकर ये है, ये जो सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी कहानी का निचोड़ ये है कि जो एसिड लेवल है स्टमक का वो 1.5 होता है पीएच वैल्यू उसकी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप थोड़ा, एक तो वाटर इनटेक बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो चीज़ मेंटेन रहे, और दूसरा ये होना चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसका सत्यानाश नहीं करना चाहिए उल्टी सीधी चीज़ें खा के कि चल यही खा ले, चल ये खा कर देख क्या होता है, मेरा दोस्त भी तो ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको धीरे धीरे विनाश की तरफ लेकर जाती हैं। समझ रहे हैं विनाश की तरफ? डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी, डिस्ट्रक्शन ऑफ योर फैमिली, एवरीथिंग। चलिए आगे जो चलते हैं। ड्रिंकेबल अल्कोहल उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होता है फिर मतलब? किसमें? जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होता है 7%। अब ये तो वही है ना, ये तो मतलब रिसर्च का मुद्दा है ना, 7%। कभी रिसर्च करा नहीं इस पर, अलग अलग कैटेगरी। 7 होता है 77। अच्छा चलो जो भी होता है, जो भी होता है। और उसमें भी तो लोग शर्त लगाते हैं कि भाई मैंने तो पानी में मिलाकर पी लिया, मैंने तो इसमें मिलाकर पी लिया, मैंने तो इसमें मिलाकर पी लिया, तो फालतू की चीज़ें कभी इन चक्रों में पढ़ना हो। सर अगर आइसोप्रोपिक अल्कोहल हल्का से भी उसका क्या होगा? अरे भैया आइसोप्रोपाइलिक अल्कोहल बहुत खतरनाक चीज़ सर होती वैसे है। 99% उसमें होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, उससे अंधापन भी हो जाता है, आदमी अंधा तक हो जाता है। पीने के बाद या फिर आंखों डालने? अरे पीने के बाद आपको कौन डालेगा उसको? हाँ सही में, मतलब वो सीधा सीधा आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। मैं इसमें जो है ये आप सोचोगे कि मैं टॉपिक से डेविएट होकर आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये 10th क्लास जो है आपकी, इसमें कार्बोनेटेड कंपाउंड्स हैं, उसमें हम एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सारा कुछ पढ़ेंगे, और उसमें अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स वो सारे कुछ मेंशन है। तो आप ये समझ जाएंगे कि धीरे धीरे, मतलब आप ये देखेंगे कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने खतरनाक हैं। वो फैशन में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, वीडियोस बनती हैं बहुत सारी,
इश्क बरांडी चढ़ गई, सानू और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो वो तो सारे फैशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो फिल्मों में दिखाते हैं, गाने होते हैं, गानों में होता ही शराब का जिक्र और कुछ होता ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें, मुझे लगता है शराब के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में शायद, ऐसा लगता है। अगर आप कोई फिल्म में गाने वाने सुन लो तो ये लगता है उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में, सिलेबस का हिस्सा है, और एग्जाम में ये चीज़ पूछी भी जाती है कि आप उसके कोई 4 साइड इफेक्ट्स या कोई 5 साइड इफेक्ट्स बताइए। तो उससे अल्टीमेटली जो pH जो लेवल है बॉडी का, स्टमक का, वो डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्ब होता है तो आपको स्टमक में प्रॉब्लम होती है। सर डॉक्टर में किस खुशी में सर मतलब तो डॉक्टर मतलब क्यों सर आप सोल्डर में रिकमेंड करते हैं कि वाइन पीनी चाहिए? वो जो ऐसे वेदर में काम कर रहे हैं ना, जैसे -30 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन में जो हैं, जो कारगिल में लगे हुए हैं, वो इतने डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं, और उसमें भी वो बता देते हैं भाई आपको इतना ml लेना है, तो दैट इज़ लाइक अ मेडिसिन, वो दवा की तरह है। तो छोटे बच्चे को भी ब्रांडी लेने के लिए बोलते हैं, वो छोटे बच्चे की दवाई है भाई ब्रांडी, पता चला तुम ही लगे पड़े उस पर, है ना, तो वो गलत है। ठीक है, चलिए जी आज इतना करते हैं, बाकी कल देखते हैं। सर HCl यहाँ पर नाइट्रोजन को फील करता है तो बॉडी में आता है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है pH? सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो pH है, pH जितने भी एसिड हैं उन सबका जो pH है वो आपका 7 से कम ही होता है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड हो, HCl हो, नाइट्रिक एसिड हो, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बर्निंग सेंसेशन का है। सल्फ्यूरिक एसिड बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और नाइट्रिक एसिड तो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो कहीं जंगल वंगल में भी गिर जाए तो पूरे के पूरे पौधे को जला देता है, वो तो इतना खतरनाक है। ठीक है, चलिए जी बाकी डिटेल में बात सर करते हैं। ऑक्सीजन की दवा की ओवरडोज से इंसान मर जाता है? किससे? किसी भी दवा की ओवरडोज से इंसान मर सकता है?